بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Once again, I'm going to record a science class for class 4th and this is my lecture number 7. Our previous topics, if you remember, in the previous 6 lectures, we have studied about cells, we have studied about tissue, we have studied about organs, organ systems, and the skeletal systems. Our previous topic was skeletal system. Skeletal system, we have explained skeletal system in 2 lectures. The first lecture was about skeleton and function of skeleton, and our second lecture was about the composition of skeleton, right? Look at here. Skeletal system. What is skeletal system? The answer is a bony framework present inside the body is known as skeletal system. Skeletal system functions. Skeletal system perform different kinds of functions like protections of delicate organs, movements, and protections, movements, strength, support, and provide shape, right? Then you have learned about the composition of skeleton. In composition, you have learned that our skeleton mainly consists of bones. These bones are joined together with each other at joints. Joint means the meeting point of bones. At joint, the bones are held together with the help of specialized tissues called ligaments. Then you have learned about the types of joints. There are basically 3 kinds of joints, 2 kinds of joints. One we call the immovable joint and the other we called the movable joint. The immovable joints are those joints in which no movement exists. Such joints are present inside our skull, and movable joints are those joints in which movement exists. Movable joints are further of 2 types. One we called the ball and socket joint and the other is hinge joints. Ball and socket joint is a type of joint in which movements produced in multi directions. This kind of joints are present inside our shoulder and hip. And hinge joints is a type of joint in which unidirectional movement produced. A movement produced in only one direction. So a joint in which movement produced in one direction is called hinge joints. And hinge joints are present inside our elbow. Our elbow joint and knee joints are examples of hinge joints, right? This was the previous topics I have revised. Now, I'm coming to my new topic. Our new topic is muscular system. What is muscular system? Muscular system is a specialized systems which work together with our skeletal systems and they produce movements in our body. Muscular systems is a system which is attached with our bones, our skeletal systems, and their main function is to produce movements in the body, right? What is the function of muscular system? Muscular system is a system consists of muscles and their main function is to produce movements in the body, to produce movement in the body, okay? Now, muscular system is consist of muscles and tendons. What is the composition of muscular system? Muscular system consists of muscles and tendons. ठीक है, जिस तरह आपने skeletal system में पढ़ा कि skeletal system bones और ligament का बना होता है, इसी तरह muscular system बना होता है muscles का और tendons का. अब muscles क्या है और tendons क्या है, इसको आपने सीखना है. Muscles क्या है? तो muscles means muscles are specialized cells or tissues which has the ability to contract and relax, right? These are special type of cylindrical cells. These cylindrical cells have the ability to contract and relax, and due to this property they produce movements in our body.
What is muscles? Muscles are specialized cells or specialized tissues which has the ability to contract and relax, and just because of this property they produce movements in our body. Okay, now what is tendons? What is tendon? The answer is tendon is a special type of connective tissues which join muscles with the bone. What is tendon? Tendon is a special type of connective tissues which join muscle with the bone. टेंडन एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है जो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं, मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा एक मसल्स है, बाइसेप मसल, नीचे ट्राइसेप मसल है। ये मसल इन हड्डियों के साथ अटैच हैं। यहाँ पे शोल्डर बोन इधर अटैच होते हैं और यहाँ पे दो हड्डियाँ इनके साथ अटैच होते हैं। तो जिस कनेक्टिव टिश्यूज़ की मदद से अटैच होते हैं उसको कहा जाता है टेंडन। याद रहेगा। व्हाट इज़ टेंडन? टेंडन एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल और बोन को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। क्लियर? फिर से देख लें। और मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स, मसल ख़ास किस्म के सेल होते हैं, उनमें कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है और इसी वजह से ये बॉडी के अंदर मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। टेंडन्स हैं, टेंडन्स एक ख़ास किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ मसल्स। बॉडी के अंदर कितनी किस्म की मसल्स मौजूद हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन योर बॉडी? द आंसर इज देयर आर 3 kinds of muscles in our body. There are 3 kinds of muscles in our body. अब नेक्स्ट आपने इन मसल्स के नाम सीखने हैं 3 kinds के, और उनके प्रॉपर्टीज सीखनी है और वो बॉडी में कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, ये चीज़ें आपने सीखनी है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी? द आंसर इज There are 3 types of muscles in our body. कौन कौन से हैं? First one, smooth muscles. Second one, cardiac muscles. Third one, skeletal muscle. First one, smooth muscle. Second one, cardiac muscle. And third one, skeletal muscle. ठीक है जी। 3 किस्म के आपके बॉडी के अंदर मसल हैं। एक को कहा जाता है स्मूथ मसल, दूसरा है कार्डियक मसल, तीसरा है स्केलेटल मसल। ठीक है। अब आपने इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और बॉडी में ये मसल्स कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपने सीखना है। ठीक है। अभी तक आ जाएं फर्स्ट वन की तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ आते हैं। स्मूथ मसल्स की पहली प्रॉपर्टी है दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। अब इनवॉलंटरी का क्या मतलब है? याद रख लें, इनवॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में मसल्स मौजूद है, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हरकत करते हैं। मैं हाथ को ऊपर उठाना चाहता हूँ तो ऊपर चले जाते हैं, मैं हाथ को नीचे करवाना चाहता हूँ तो मसल मेरे हाथ को नीचे करवा देते हैं। इन मसल्स की मूवमेंट ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसे मसल्स मौजूद हैं जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हरकत नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हरकत करते हैं। ब्रेन का एक ख़ास हिस्सा है, वो उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लेकिन ये मूवमेंट्स खुद ब खुद होती है, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। तो जो मसल्स मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मूवमेंट नहीं करता उसको कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल। ठीक है। तो स्मूथ मसल इज़ एन इनवॉलंटरी मसल। इनकी मूवमेंट ऑटोमेटिक होती है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये हरकत नहीं करते। इसकी कहाँ पे मौजूद है? दीज मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड योर स्टोमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर। आपके स्टोमक के अंदर है,
इंटेस्टाइन्स में है, ब्लैडर में है। स्टोमक आप जानते हैं जहाँ पे आपकी खुराक जमा हो रही है, इंटेस्टाइन्स में खुराक की ब्रेकडाउन होती है और ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा होता है। आपके बॉडी के अंदर पेशाब जहाँ पे जमा होता है उस सैक को कहा जाता है ब्लैडर। इन ब्लैडर के अंदर मसल्स होते हैं, स्टोमक के अंदर जिसको हम कहते हैं मैदा, इसके अंदर मसल्स होते हैं और इंटेस्टाइन्स कुलमे से होता है पुख्तों के वायु, वहाँ पर भी मसल्स होते हैं। ये मसल्स आपके स्टोमक के अंदर और इंटेस्टाइन्स के अंदर मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह एक वेवी मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह वेव्स मूवमेंट्स के जा रहे होते हैं और इसी वेव्स की वजह से खुराक आपके बॉडी, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर मूवमेंट करती है। जब आप खुराक खा लेते हैं माउथ के अंदर, खुराक चली जाती है स्टोमक के अंदर चली जाती है। आप स्टोमक में इन स्मूथ मसल्स की मदद से उसकी डाइजेशंस होती है और फिर ये स्लोली मूवमेंट करता है आपके इंटेस्टाइन्स में और इंटेस्टाइन्स में ये आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता जाता है और ब्लड में शामिल होता जाता है। ठीक है जी। तो इनकी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? आपके ब्रेन का ऑटोमेटिक हिस्सा इसकी मूवमेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि जब आप रात को खाना खा लेते हैं तो आप तो सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्टोमक के अंदर। वो मूवमेंट बदस्तूर आप सोए हुए होते हैं, लेकिन वो मूवमेंट आपके इंटेस्टाइन में एक ख़ास रेट के साथ जारी रहती है और आपके बॉडी के अंदर खुराक हज़म हो रहा है, होता है। ठीक है जी। फिर से देख ले, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हरकत नहीं करते, इनकी हरकत ऑटोमेटिक होती है और ये आपके इंटेस्टाइन्स में, स्टोमक में और ब्लैडर में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। इनकी मूवमेंट कहाँ से कंट्रोल होती है? ब्रेन के ऑटोमेटिक पार्ट से कंट्रोल होती है। ठीक। अच्छा जी, दूसरा किस्म है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जिस तरह नाम से पता चलता है, कार्डिक मसल आपके हार्ट में मौजूद होते हैं, दिल के। आपने हार्ट देखा है, एनिमल का हार्ट आपने कभी देखा होगा। एनिमल का हार्ट स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है, उनके वॉल्स मजबूत मसल्स के बने होते हैं। उन मसल्स को कहा जाता है कार्डिक मसल्स। ठीक है जी। हमारे हार्ट के अंदर कौन से मसल्स मौजूद हैं? कार्डिक मसल्स मौजूद हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी। दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी। इनकी मूवमेंट भी ऑटोमेटिक होती है। आप अपनी हार्ट बीट को, आपकी दिल की जो धड़कन है, न इसको आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, न इसको अपनी मर्ज़ी से आप कम कर सकते हैं, न अपनी मर्ज़ी से इसकी मूवमेंट आप रोक सकते हैं और खुदा ना करे अगर रुक गया तो फिर इसको दोबारा हम इनिशिएट नहीं करवा सकते। ठीक है जी। इनकी मूवमेंट तेज़ करवाना, कम करवाना और एक ख़ास लेवल पे मेंटेन करना, ये ऑटोमेटिकली होता है। ब्रेन का ऑटोमेटिक पार्ट इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर्स। अच्छा, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, आप अगर शेप को देख लें, शेप इनके ब्रांच्ड हैं, इनके सेल्स ब्रांच्ड होते हैं, एक दूसरे की इस तरह ओवरलैप करते जाते हैं, ब्रांच होते हैं। ये बोन्स के साथ अटैच नहीं होते, ब्रांच फॉर्म में होते हैं और आप हमारी हार्ट के वॉल्स को बनाते हैं। इनकी एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी थकते नहीं हैं। जिस दिन से आप पैदा हो जाते हैं उसी दिन से दिल की धड़कन शुरू हो जाती है और जब तक हम जिंदा रहते हैं 24 घंटे मुसलसल दिल धड़कता रहता है, ये कभी थकते नहीं हैं। ठीक है जी। लास्ट वन है स्केलेटल मसल्स। Skeletal muscles, as the name indicates, those muscles which are attached with our skeleton or bones. इनकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे स्केलेटन के साथ या बोन्स के साथ अटैच होते हैं और उनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे आर वॉलंटरी इन नेचर। दे आर वॉलंटरी इन नेचर। अब वॉलंटरी का क्या मतलब है? इनकी मूवमेंट हमारी मर्जी के मुताबिक होती है। ठीक है। अब अगर मैं अपने हाथ को ऊपर करवा रहा हूँ, लिखाई की मदद से लिख रहा हूँ, यहाँ से उधर जाना चाहता हूँ या पीछे वापस जो है वो आना चाहता हूँ, ये तमाम किस वजह से है? स्केलेटल मसल्स की वजह से है। स्केलेटल मसल्स मेरे बॉडी के बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ये मसल जो है मेरे मर्जी के मुताबिक हरकत करते हैं। दे आर वॉलंटरी, दे मूव अकॉर्डिंग टू माई विल, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। फिर से देख लें, स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हैं, ये वॉलंटरी होते हैं, यानी हमारी
मर्ज़ी के मुताबिक हरकत करते हैं और इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन मूवमेंट्स, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। इनकी मदद से हम मूवमेंट करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रनिंग करते हैं, चीज़ें उठाते हैं और हमें सपोर्ट मिलता है। ये तमाम इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसके साथ आपका लेक्चर एंड तक पहुंच गया है। नाउ आई एम गोइंग टू समराइज द लेक्चर। ठीक है, अब मैं आपको समरी दे रहा हूँ पूरे लेक्चर की। 1 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मस्कुलर सिस्टम आपके बॉडी का वो सिस्टम है जो मसल्स से बना हुआ है। ये आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट्स पैदा करते हैं। मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ का बना है? मसल्स का बना है, टेंडन्स का बना है। मसल्स ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिनमें कंट्रक्शन और रिलैक्सेशंस यानी सुखड़ने और फैलने की खासियत होती है और इसी वजह से ये मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। टेंडन एक ख़ास किस्म के टिश्यूज़ हैं। ये टिश्यूज़ मसल को बोन के साथ ज्वाइन करने में हेल्प देती है या मसल को बोन के साथ ज्वाइन करवाती है। ठीक है, फिर मसल्स की किस्में हैं, तो मसल्स के 3 किस्में हैं। पहली किस्म है स्मूथ मसल, दूसरी किस्म है कार्डियक मसल और तीसरी किस्म है स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स ये इनवॉलंटरी होते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हरकत नहीं करते। स्मूथ मसल्स आपके इंटेस्टाइन्स, स्टोमक और ब्लैडर में मौजूद होते हैं और कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में मौजूद होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटन के साथ अटैच हैं। ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हरकत करते हैं और ये आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपके चलने फिरने में हेल्प करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है। ये आपका होमवर्क यहाँ पे लिखा गया है। होमवर्क आपका है यू नीड टू डिफाइन टिश्यू, एक्सप्लेन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, आपने मसल को डिफाइन करना है, डिफाइन मसल्स, आपने मसल को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स की किस्में बतानी है और उनकी खुसूसियात बतानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.